Hello dear students, this is Professor Kavita Brahmankar and today we are going to start second unit of computer graphics, that is raster scan graphics, and will cover topic 2.1 rasterization and DDA line drawing algorithm. After watching this video, you will be able to define rasterization, list line drawing algorithms and write DDA algorithm with its advantages and disadvantages. What is rasterization? Rasterization means to convert an image into bitmap and bitmap means a grid of pixels. जो कोई भी इमेज है उस इमेज को पिक्सल के फॉर्म में कन्वर्ट करना, that process is called rasterization. Rasterization is a scan conversion method, means turning on or off the particular pixel. और rasterization को ही scan conversion बोलते हैं क्योंकि हम इमेज को पिक्सल के फॉर्म में डिस्प्ले करते हैं एंड पिक्सल की इंटेंसिटी ऑन और ऑफ करते हैं अकॉर्डिंग टू द रिक्वायरमेंट. अगर पिक्सल की इंटेंसिटी ऑन है तो इमेज स्क्रीन पे डिस्प्ले होगी और अगर इंटेंसिटी ऑफ है तो स्क्रीन पे इमेज डिस्प्ले नहीं होगी. Scan conversion of a line means turning on the pixels for a line. Means लाइन का स्कैन कन्वर्जन करना है, इसका मतलब लाइन के ऊपर जितने भी पिक्सल्स प्रेजेंट है उन सब की इंटेंसिटी हमको ऑन करनी है. When we want to draw a line, that means we have to change the intensity of the pixels present on that line. अगर हम स्क्रीन पे कोई लाइन ड्रॉ कर रहे हैं, इसका मतलब उस लाइन के जितने भी पिक्सल्स है उन सब पिक्सल्स की इंटेंसिटी हम हाई करने वाले हैं. Then we will see what are the line drawing algorithms. To draw a line on the screen, there are two line drawing algorithms. First one DDA and second one Bresenham line drawing algorithm. DDA algorithm is also called as, or it stands for Digital Differential Analyzer. Then ये दोनों भी algorithm based on increment method. Both the algorithms are based on increment method. इसका मतलब ये दोनों भी algorithm हमेशा x and y कोऑर्डिनेट की वैल्यू इंक्रीमेंट करते रहेंगे और लाइन ड्रॉ करेंगे. Then to draw a line segment, we should know starting point and ending point of the line, that is x1 y1 and x2 y2. कोई भी लाइन सेगमेंट अगर ड्रॉ करना है हमको स्क्रीन पे, हमको स्टार्टिंग पॉइंट दैट इज x1 y1 एंड एंडिंग पॉइंट दैट इज x2 y2 पता होना जरूरी है. Now we have to fill the intermediate pixels or points between x1 y1 and x2 y2. अभी लाइन ड्रॉ करनी है, इसका मतलब स्टार्टिंग पिक्सल से लेकर एंडिंग पिक्सल तक जितने भी इंटरमीडिएट पिक्सल्स हैं उनकी वैल्यू कैलकुलेट करनी है और वैल्यू कैलकुलेट करने के बाद उनकी इंटेंसिटी हाई करनी है, तब ही हमारी लाइन स्क्रीन पे डिस्प्ले होगी. एंड फाइनली जॉइन ऑल द पिक्सल्स टू गेट अ कंटिन्यूअस लाइन सेगमेंट बिटवीन टू पॉइंट्स. ये दो पॉइंट्स है स्टार्टिंग एंड एंडिंग पॉइंट, और जितने भी इंटरमीडिएट पिक्सल्स कैलकुलेट हुए हैं उन सब को हम ज्वाइन करेंगे टू फॉर्म अ सिंगल लाइन सेगमेंट. Then we'll see DDA line drawing algorithm. DDA algorithm generates a line from differential equation of line, hence called DDA. अब DDA को डिजिटल डिफरेंशियल एनालाइजर क्यों बोलते हैं? बिकॉज ये लाइन के डिफरेंशियल इक्वेशन का यूज करता है स्क्रीन पे लाइन ड्रॉ करने के लिए, इसलिए इसको DDA बोला जाता है. इट इज अ इंक्रीमेंटल स्कैन कन्वर्जन मेथड. ये हमेशा x और y कोऑर्डिनेट की वैल्यू इंक्रीमेंट करता रहेगा बट सम फिक्स्ड पॉइंट, इसलिए इसको इंक्रीमेंटल स्कैन कन्वर्जन मेथड बोलते हैं. DDA algorithm is used for rasterization of lines, triangles and polygons.
डीडी एल्गोरिथम का यूज हम लाइंस को, ट्रायंगल्स को और पॉलीगॉन्स को रास्टराइज करने के लिए करते हैं एंड दिस मेथड इज वेरी सिमिलर टू न्यूमेरिकल डिफरेंशियल इक्वेशन. DD algorithm uses a function that is called sine function and sine function makes the algorithm to work in all the quadrants. Sine function यूज करने की वजह से हमारे पॉइंट्स पूरे क्वाड्रेंट्स में या फिर जो भी इमेज हमको ड्रॉ करनी है वो हम पूरे क्वाड्रेंट्स में ड्रॉ कर सकते हैं. देन सिंटैक्स फॉर साइन फंक्शन, साइन and in bracket argument is provided. Now depends on the argument, ये sin function कुछ वैल्यू हमको रिटर्न करेगा. So if argument is less than 0 then this sin function will return the value -1. If argument to the sin function is greater than 0 then sin function will return value 1 and if the argument is equal to 0 then sin function will return the value 0. Again we will use one function that is called absolute function and it is used to convert negative values to positive values. Absolute function हमेशा रिजल्ट को निगेटिव से पॉजिटिव कन्वर्ट करने में यूज होगा. Then let us see DD algorithm. Step number 1. Read the endpoints of line x1, y1 and x2, y2. यहाँ पे हमको x1, y1, x2 और y2 के वैल्यूज रीड करेंगे. In step number 2, calculate delta x and delta y. Delta x is the horizontal difference between second x coordinate and first x coordinate. So del x equal to absolute of x2 minus x1. अगर x2 माइनस x1 का रिजल्ट निगेटिव आता है तो एब्सोल्यूट फंक्शन उसको पॉजिटिव में कन्वर्ट करेगा. एंड डेल y मीन्स द वर्टिकल डिफरेंस बिटवीन सेकेंड y कोऑर्डिनेट एंड फर्स्ट y कोऑर्डिनेट. यहाँ पे भी अगर ये y2 माइनस y1 का रिजल्ट निगेटिव आता है तो एब्सोल्यूट फंक्शन उसको पॉजिटिव में कन्वर्ट करेगा. देन स्टेप नंबर 3. इफ del x is greater than or equal to del y. यहाँ पे हमको del x और del y के वैल्यू कंपेयर करने हैं. सो अगर del x की वैल्यू बड़ी है या फिर इक्वल टू है del y से देन वी विल असाइन del x इक्वल टू लेंथ. अगर हमारी इफ कंडीशन ट्रू हो जाती है मीन्स del x की वैल्यू एक तो del y के बराबर है या फिर बड़ी है तो हम del x की वैल्यू लेंथ वेरिएबल को असाइन कर देंगे. और अगर हमारा इफ कंडीशन अगर फॉल्स हो जाती है देन वी विल जंप टू एल्स लूप एंड वी विल असाइन वैल्यू ऑफ del y टू लेंथ वेरिएबल. अगर ये इफ कंडीशन फॉल्स हो जाती है तो हम एल्स लूप में जंप करेंगे और del y की वैल्यू लेंथ वेरिएबल को असाइन कर देंगे. यहाँ पे हम अब इफ लूप को क्लोज कर देंगे. देन स्टेप नंबर 4. del x इक्वल टू x2 माइनस x1 डिवाइडेड बाय लेंथ. यहाँ पे हमको न्यू del x की वैल्यू कैलकुलेट करना है. x2 माइनस x1 हमको स्टेप 2 से मिलेगा एंड वी विल डिवाइड दैट बाय लेंथ. अगेन इन स्टेप 5 वी हैव टू कैलकुलेट न्यू वैल्यू फॉर del y दैट इज y2 माइनस y1 डिवाइडेड बाय लेंथ. यहाँ y2 माइनस y1 की वैल्यू हमको और स्टेप नंबर 2 से मिलेगी. देन स्टेप नंबर 6. एक्चुअली यहाँ पे हमको x एंड y की वैल्यू कैलकुलेट करनी है. सो x इक्वल टू x1 प्लस 0.5 इंटू साइन ऑफ del x. सो x1 की वैल्यू हमको स्टेप नंबर 1 से मिलेगी प्लस 0.5 इंटू साइन फंक्शन. नाउ साइन फंक्शन को पैरामीटर del x हमने पास किया है. सो डिपेंडिंग ऑन द वैल्यू ऑफ del x मीन्स अगर del x की वैल्यू 0 है तो ये कंप्लीट साइन फंक्शन हमको 0 वैल्यू रिटर्न करेगा. अगर del x की वैल्यू लेस देन 0 है सो ये कंप्लीट साइन फंक्शन हमको -1 वैल्यू रिटर्न करेगा. और अगर del x की वैल्यू 0 से बड़ी है देन साइन फंक्शन हमको 1 वैल्यू रिटर्न करेगा. सिमिलरली वी हैव टू कैलकुलेट द वैल्यू फॉर y दैट इज y1 प्लस 0.5 इंटू साइन ऑफ del y. सो अगेन हमको y1 की वैल्यू स्टेप नंबर 1 से मिलेगी. सो इन दिस वे वी हैव कैलकुलेटेड वैल्यूज फॉर x and y coordinate. Then
स्टेप नंबर 7, इट इज वेरी इंपॉर्टेंट स्टेप बिकॉज जो भी फर्स्ट एंड लास्ट कोऑर्डिनेट है पिक्सल है उसके बीच के जितने भी इंटरमीडिएट पिक्सल्स है वो स्टेप नंबर 7 से कैलकुलेट होने वाले हैं. सो फर्स्ट ऑफ ऑल वी हैव टू इनिशियलाइज i इक्वल्स टू 1. देन हमको व्हाइल लूप यूज करना है और व्हाइल लूप की कंडीशन है i इज लेस देन और इक्वल टू लेंथ. हमको ये व्हाइल लूप चलाना है जब तक i की वैल्यू लेंथ के बराबर है या फिर i से छोटी है तब तक ये हमको व्हाइल लूप चलाना है. सो नाउ i इक्वल्स टू 1. सो i इज लेस देन और इक्वल टू लेंथ. कंसिडर करो कि ये हमारी व्हाइल लूप की कंडीशन ट्रू है. अगर कंडीशन ट्रू है सो वी विल एंटर इन द व्हाइल लूप, देन वी विल एग्जीक्यूट प्लॉट स्टेटमेंट. सो प्लॉट इंटीजर ऑफ x कॉमा इंटीजर ऑफ y. सो अब ये इंटीजर फंक्शन का काम क्या है? तो इंटीजर फंक्शन ये x की वैल्यू के फ्रैक्शनल पार्ट को डिस्कार्ड करेगा और सिर्फ इंटीजर वैल्यू को ही कंसिडर करेगा. सो सपोज x की वैल्यू 0.5 है, सो पॉइंट के बाद 5 है, सो 0.5 इज द फ्रैक्शनल पार्ट, तो उसको इंटीजर फंक्शन डिस्कार्ड करेगा एंड इट विल कंसिडर ओनली 0, दैट इज द इंटीजर पार्ट. सो इन दिस वे इंटीजर फंक्शन वर्क्स. देन वी हैव टू इंक्रीमेंट द वैल्यू ऑफ x बाय डेल x. x में हमको डेल x ऐड करना है तो हमको न्यू वैल्यू ऑफ x मिल जाएगी. सिमिलरली वी हैव टू कैलकुलेट द वैल्यू ऑफ न्यू y बाय एडिंग del y value into the y. Then we have to increment the value of I by 1. Now 1 से I की वैल्यू इंक्रीमेंट हो गई तो ये अब 2 हो गई. So अगेन फिर से हम जाएंगे व्हाइल लूप में, कंडीशन चेक करेंगे कि 2 इज लेस देन और इक्वल टू लेंथ है क्या. अगर कंडीशन ट्रू है तो अगेन हम प्लॉट लूप में जाएंगे और ये सब एग्जीक्यूट करेंगे. लेकिन कंसिडर करो कि कंडीशन अभी फॉल्स हुई है. सो अगर हमारी व्हाइल लूप की कंडीशन फॉल्स होती है सो इमीडिएटली वी विल गेट आउट ऑफ द लूप. हम इमीडिएटली लूप के बाहर निकलेंगे जैसे ही व्हाइल लूप की कंडीशन फॉल्स होती है एंड विल एग्जीक्यूट स्टेप नंबर 8, दैट इज एंड. सो these are the steps of DDA algorithm. Now advantages of DDA algorithm. It is faster method for calculating pixel position. ये मेथड बहुत ही फास्ट है जो कि इंटरमीडिएट पिक्सल के पोजीशंस या वैल्यूज कैलकुलेट करती है. इट इज वेरी इजी टू अंडरस्टैंड. ये मेथड बहुत इजी है अंडरस्टैंड होने के लिए. देन इट रिक्वायर्स नो स्पेशल स्किल्स फॉर इम्प्लीमेंटेशन. यूजर को इस एल्गोरिथम को इम्प्लीमेंट करने के लिए स्पेशल स्किल्स की रिक्वायरमेंट नहीं है. देन डिसएडवांटेजेस ऑफ DDA. बिकॉज ऑफ राउंड ऑफ, errors were introduced and causes the calculated pixel position to drift away from the true line path. यहाँ पे हमको फ्लोटिंग पॉइंट ऑपरेशंस मिल रहे हैं, मीन्स हमको वैल्यूज को राउंड ऑफ करना पड़ रहा है. सो राउंड ऑफ करने की वजह से हम ओरिजिनल लाइन के पाथ से थोड़ा डाइवर्ट हो रहे हैं, इसलिए एरर्स ज्यादा इंट्रोड्यूस होने के चांसेस हैं. देन फ्लोटिंग पॉइंट ऑपरेशंस मेक्स द एल्गोरिथम टाइम कंज्यूमिंग. ऑब्वियस है कि फ्लोटिंग पॉइंट ऑपरेशन जब हम यूज करते हैं सो इट विल टेक मोर टाइम एज कंपेयर टू इंटीजर ऑपरेशंस. देन एक्यूरेसी इज पुअर. सो हम ओरिजिनल लाइन के पाथ से थोड़ा डाइवर्ट हो रहे हैं बिकॉज ऑफ एरर्स, तो जिगजैग लाइन ड्रॉ होने के चांसेस है. सो हम बोल सकते हैं कि एक्यूरेसी इज समवॉट पुअर. देन लेट अस समराइज टुडेज लेक्चर. टुडे वी हैव स्टडीड व्हाट इज रास्टराइजेशन, What are the line drawing algorithms? हमने स्टेप्स को डिस्कस किया है कि DDA एल्गोरिथम की स्टेप्स कौन कौन सी है एंड वी हैव स्टेटेड द एडवांटेजेस एंड डिसएडवांटेजेस ऑफ DDA एल्गोरिथम. सो अगर कोई पॉइंट आपको समझ में नहीं आया है सो फील फ्री टू कॉन्टेक्ट मी और reach out to the following email ID and watch the videos frequently till your concept gets cleared. Keep learning and enjoy learning. Thank you.